کہ بالبیک شہر کا تذکرہ تو اکثریت نے سن رکھا ہوگا۔ بالبیک کا دوسرا نام بائبلون تھا۔ بائبلون شہر کی بنیاد ایک اندازے کے مطابق 4000 سال قبل مسیح میں موجودہ عراق کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر پڑی، اور آغاز میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گاؤں بڑھتا بڑھتا ایک بڑی سٹی بن گیا۔ بالبیک میسوپوٹیمیا موجودہ عراق ہے۔ بائبلون ایک ایسا شہر ہے جو پوری سویلائزیشن کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس تاریخی شہر کو سٹی آف سن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بالبیک ایسا شہر ہے جس کے گرد صدیوں پرانی اسرار، واقعات، روایات اور ناقابل فہم تعمیرات لپٹی ہوئی ہیں۔ یہاں کا سب سے فیمس ٹیمپل ٹیمپلیکس ہے، جسے دنیا کے قدیم عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالبیک کی روحانی اور ماوراتی تجربات، بعض زائرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بالبیک میں عجیب و غریب حرکات دیکھی، رات کے وقت روشنیاں اور غیر مرئی قدموں کی آوازیں، گھنے اندھیرے میں سرگوشیاں، سردی ہونے کے باوجود جسم پر پسینہ، یہ تمام چیزیں اس جگہ کو مزید پراسرار اور حیرت انگیز بنا دیتی ہیں۔ لیبنان کے ایک مندر کے ایک سٹرکچر پر کچھ ایسے پتھر لگائے گئے جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک ایک پتھر کا وزن 3 بلو ویلز جتنا وزنی ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان کو بڑی مہارت سے 1 پیس میں نہ صرف کاٹا گیا بلکہ 1.5 کلومیٹر دور سے ٹرانسپورٹ بھی کیا گیا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے۔ لیکن مسٹری یہ ہے کہ آج تک انسانوں کی کوئی ایسی سویلائزیشن نہیں گزری جو اتنے بڑے پتھر کاٹنے کے لیے مشہور ہو۔ کیا پہلے وقتوں میں کوئی ایسی سویلائزیشن گزری ہے جن کے پاس وہ نالج تھی جو آج ہمارے پاس نہیں؟ ان پتھروں کی جانچ پڑتال کے لیے جرمن آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس کان پر جانچ پڑتال شروع کی جہاں سے یہ پتھر لائے گئے تھے۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یا تو کسی موقوف فطرت طاقت کی مدد لی گئی یا کوئی ایسا قدیم علم موجود تھا جو آج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ٹیلیتھونز 3 عظیم پتھر ٹیمپل آف جوپیٹر کے تہ خانے میں بڑے بڑے پتھر رکھے گئے جنہیں ٹیلیتھون کہا جاتا ہے۔ ان پتھروں کی لمبائی تقریباً 20 میٹر اور وزن تقریباً 800 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے، یہ پتھر نہ صرف درست اندازے میں تراشے گئے بلکہ بالکل درستگی کے ساتھ نصب بھی کیے گئے۔ آرکیولوجسٹ ٹیم نے جب اس کان پر جانچ پڑتال شروع کی تو وہاں ان کو ایک ایسا پتھر ملا جو انکمپلیٹ ہے، جس کا وزن تقریباً 1200 ٹن بتایا جاتا ہے، یعنی تقریباً 4 بوئنگ 747 جتنا۔ یہاں کھدائی کرنے کے بعد آرکیولوجسٹ کو زمین کے اندر کچھ ایسے ثبوت ملے جن پر یقین لانا کافی مشکل ہے۔ زیر زمین سرنگیں اور خفیہ کیمرے، بالبیک کے نیچے پائے جانے والی خفیہ سرنگیں اور کیمرے بھی اس جگہ کو پراسرار بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قدیم دور میں پجاریوں کی رسومات بھی خفیہ طور پر ادا کی جاتی تھیں۔ کئی سرنگیں ایسی ہیں جن کا اختتام آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ غار نما راستے ایسے ہیں جس میں داخل ہونے کے بعد کچھ افراد واپس ہی نہیں آئے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ سرنگیں دوسری دنیا یا جناتی دنیا سے جا ملتی ہیں۔ کیا یہ صرف کہانی ہے یا کوئی حقیقت؟ ہسٹوریکل اردو لیب کی جانب سے تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، لیبنان کی بیکا والی کی ویسٹ میں ایک بالبیک نامی شہر ہے جہاں رومن امپائر کے کھنڈرات کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ پر مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے دکھنے والے یہ کھنڈرات بنے تو رومن امپائر کے دور میں تھے، لیکن اس کے نیچے آرکیولوجسٹ کو کچھ ایسے ثبوت ملے جن کا رومن امپائر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کم از کم ابھی تک تو نہیں۔ یہاں قدیم رومیوں کا بنایا گیا ایک ٹیمپل ہے جس کو ٹیمپل آف جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ مندر آج بھی رومن امپائر کے آرکیٹیکچر اور ان کے ہنر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، پر اس مندر کی کنسٹرکشن کے نیچے بہت بڑے پتھروں کی فاؤنڈیشن پائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید یہ 1 پیس نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بڑی مہارت سے اسے جوڑا گیا کہ یہ ایک ہی لگے، لیکن مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک ہی جوائنٹ پتھر ہے۔ یہ پتھر جن کو بعد میں ٹیلیتھونز کا نام دیا گیا،
एक एक पत्थर की लंबाई 62 फीट, ऊंचाई 14 फीट और 12 फुट मोटे हैं। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक पत्थर का वजन 900 टन है। इतने बड़े पत्थर को एक्यूरेट ब्लॉक में काटना और उसको 30 फुट ऊपर उठाकर रखना इंसानी जिंदगी में शायद पहली बार किया गया था। अगर वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक एक पत्थर 9 लाख केजी है, यानी दुनिया के सबसे भारी जहाज एंडलो AN-225 मरिया से भी 1.5 गुना ज्यादा भारी है और पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पत्थरों में 10 गुना बड़ा है। इनके इतने बड़े साइज के बावजूद इन पत्थरों को किसी न किसी तरह कान से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर हेलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स के 400 टन के ब्लॉक के ऊपर रखा गया, जिसके ऊपर बाद में कॉम्प्लेक्स की दीवारों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में रखकर खड़ा किया गया। जिस एक्यूरेसी से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वो वाकई काफी गैर मामूली काम है, खास तौर पर उस दौर के लिए जब मॉडल मशीनरी का तस्वर करना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके दरमियान में कागज जितना भी फासला नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पर होता था। वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल्स दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बरकस टिली थॉम्स को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए यहाँ रखा गया था, क्योंकि फाउंडेशन का ये हिस्सा पहले जमीन के अंदर दफन था। ये देखने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि कोई सिविलाइजेशन अगर इतना बड़ा कारनामा अंजाम देती है तो वो उसको छुपाएगी ही क्यों? एंशिएंट रोमन जो अपनी हर स्किल का रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर जाने जाते थे, इन टिली थॉम्स को कान से लेकर आने और उठाने के बारे में रोमन डॉक्यूमेंट्स में इसका कहीं भी जिक्र क्यों नहीं है? इससे जाहिर होता है कि इस साइट की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एंशिएंट रोमन ने नहीं की, बल्कि इन्होंने बनी बनाई फाउंडेशन के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया। इसके अलावा हिस्टोरियन के मुताबिक रोमन्स के पास जो सबसे बड़ी क्रेन थी वो सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई नामुमकिन है कि वो इन 900 टन वजनी पत्थर को उठा सके। और रोमन जिन पत्थरों को भी क्रेन से उठाते, इसके दरमियान में वो एक खास शक्ल का सुराख करते थे जिसे लुइस होल्स कहते थे, पर ऐसे कोई सुराख हमको टिली थॉम्स में नहीं मिलते। अगर रोमन्स की कॉमन इंजीनियरिंग टेक्निक का कोई रिकॉर्ड टिली थॉर्न को काटने, उठाने और यहाँ तक लाने के बारे में यहाँ मौजूद नहीं, तो फिर इतनी महारत से ये काम किसने अंजाम दिया? टेम्पल ऑफ जुपिटर की असल फाउंडेशन आखिर बनाई किसने? टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थर फिनिशिंग के साथ लगे हैं, जबकि टिली थॉर्न्स की फिनिशिंग भी नहीं है और इन पर विंड और सैंड वर्जन के असरात वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं कि जैसे हजारों साल से यहीं पड़े थे। कई माहिरीन का ख्याल है कि इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए टिली थॉम्स रोमन एम्पायर के दौर में नहीं बल्कि ये 12,000 साल पुराने हैं, यानी रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पहले, जो काम आज के मॉडल दौर में भी करना नामुमकिन समझा जाता है। वो उस दौर की सिविलाइजेशन ने कैसे किया, ये एक राज है जो माहिरीन आज तक नहीं बता पाए। बाल्बिक में सिर्फ यही टिली थॉम्स ही नहीं जो इंसानी दिमाग को चकरा कर रख देते हैं। टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई मकामात पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। इस तर्ज के बराबर में 800 टन के इस पत्थर को देखें, इसको हिलाना तक भी कोई मामूली बात नहीं थी। इसके बाद आ जाते हैं साउथ वॉल पर, जहाँ 400 से 800 के बेशुमार ब्लॉक्स पाए जाते हैं, कुछ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के नीचे। किसी को भी मालूम नहीं कि ये जमीन में कितना डीप है। इसके बीच की फिटिंग बड़ी सफाई के साथ की गई और बॉर्डर पर बनी ये लाइन 1 मिलीमीटर से भी छोटी है। ये देखने के बाद ये काम और ज्यादा पेचीदा दिखाई देता है। इन पत्थरों के सरफेस पर कुछ अजीबो गरीब निशानात मिलते हैं, जैसे आजकल की मॉडर्न माइनिंग मशीन की वजह से पत्थरों पर बनते हैं। इन निशानात की लंबाई तकरीबन 10 फीट तक है और ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है। पुराने कदीम दौर के टूल्स की बात की जाए तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस किस्म के निशानात बना सके। कम से कम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड में तो ऐसा कोई टूल ही नहीं। इस तरह के टूल मार्क्स चाइना में यानशांग क्वारी के पत्थरों पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक 16,000 टन वजन पत्थर का ब्लॉक मौजूद है, जिस पर ठीक उसी तर्ज के वैसे ही निशानात मौजूद हैं
जैसे बालबेक के पत्थरों पर हैं। इसी तरह के जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा में भी ऐसे ही निशानात देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काटकर ये शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। अगर मुआवजा किया जाए तो ये निशानात आजकल की मॉडर्न मशीन जैसी ही हैं। यानी जमाना कदीम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो मॉडर्न मशीन की तरह पत्थरों को काट सकती थी। पर जाहिर है इसका कोई ठोस सबूत अभी तक माहिरीन के पास नहीं है। अब आ जाते हैं उस कान पर जहां असल में ये बालबेक के पत्थर लाए गए थे, जिनमें ट्रिलिथोम्स भी शामिल हैं। बालबेक क्वारी टेम्पल ऑफ जुपिटर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और ये एक लाइमस्टोन की कान है। यहाँ पर कुछ आधे कटे हुए पत्थर अभी तक मौजूद हैं। ये ज्यादा हैरानकुन है क्योंकि ये टेम्पल ऑफ जुपिटर और कॉम्प्लेक्स में लगाए गए पत्थरों में सबसे बड़े हैं। कान पर ये आधा कटा हुआ पत्थर प्रेग्नेंट वुमन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ये कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट मोटा और इसका वजन 1200 टन बताया गया। ये पत्थर एक जाविये पर पड़ा हुआ है, जबकि इसका निचला हिस्सा अब भी कान के पत्थर से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भी इस शेप में इसको काटा है उनको इसका निचला हिस्सा अलग करने का मौका ही नहीं मिला। शायद बीच में ही उनको ये काम छोड़ना पड़ा, वरना शायद ये पत्थर हमको टेम्पल ऑफ जुपिटर की साइड पर पड़ा हुआ नजर आता। इस पत्थर के बॉटम पर आज भी उसी तर्ज के निशानात मौजूद हैं जो टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थरों पर देखे गए। स्विट्जरलैंड के यंगफ्राउ पार्क में प्रेग्नेंट वुमेन का एक मॉडल रखा गया, जिसके गिर्द कुछ मॉडर्न क्रेन्स के मॉडल खड़े किए गए। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन को अगर आज के दौर में भी उठाना हो तो तकरीबन 20 क्रेनें मिलकर ये काम कर सकती हैं। वो भी तब जब पत्थर के इर्द गिर्द 50 से 60 फीट तक क्रेन खड़े करने की जगह हो। पहले प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, लेकिन 2014 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने यहाँ खुदाई की तो मालूम हुआ कि ये जमीन के अंदर भी ये कान से अलग था। सिर्फ इस ब्लॉक का बॉटम आज भी कान से जुड़ा हुआ है, यानी हजारों साल तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से मिट्टी के लेयर ने इसको जमीन के अंदर धंसा दिया। साइंसदानों का मानना है कि जमीन के लेयर का सिर्फ 1 इंच 80 से 100 सालों के दरमियान होता है। प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन की पुरानी तस्वीरों में देखा जाए तो तकरीबन ये 10 फुट तक अंदर धंसा हुआ है, यानी 120 इंच। लिहाजा अगर 1 इंच 80 साल के बराबर है तो 120 इंच जमा होने में 9600 साल लगे होंगे, लगभग 10,000 साल। क्या उस जमाने में इंसान इतने चैलेंजिंग टास्क करने के काबिल थे? ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है। 2014 में जब इस पत्थर के लिए एक्सहिबिशन की गई तो एक हैरान कुन चीज सामने आई, एक और छुपा हुआ पत्थर। ये पत्थर प्रेग्नेंट वुमेन के बिल्कुल बराबर में जमीन के अंदर धंसा हुआ है। 1650 टन वजनी है। फ्रोकोटम स्टोन के नाम से पहचाना जाने वाला किसी भी कान से निकाला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये तो सिर्फ ब्लॉक का वो हिस्सा है जो ऊपर से ही नजर आ गया। जमीन के अंदर कितना डीप है और क्या छुपा हुआ है इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पत्थर आज के साइंटिस्ट, जिनमें इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, इनके लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि जो तरीके उन्हें काटने और ट्रांसपोर्ट करने और बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो किसी भी मशहूर कदीम सिविलाइजेशन हत्ता के आज के बिल्डर्स के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इस कान से बालबेक तक का सफर पहाड़ की वजह से ना सिर्फ ऊपर की तरफ है बल्कि काफी खुरदरा भी है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला कि कदीम दौर में इन पत्थरों की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सीधा रास्ता बनाया गया हो जिससे पत्थरों को खींचना आसान होता है। ना सिर्फ इतना, बालबेक की साइड पर ये बोझल पत्थर पहुंचाने के बाद उनको बारीकी से कैसे उठाया गया। मान भी लिया जाए कि एंशिएंट बिल्डर्स ने पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा तो भी पत्थर पर ऐसे कोई निशानात नहीं मिलते जो किसी पुली सिस्टम के लगने का इशारा दे रहे हों। बालबेक के ये देव कदामत पत्थर हमें एक कदीम सिविलाइजेशन का इशारा देते हैं। वो दौर जब इंसानों का कद काफी बड़ा था, उनका जिस्म किसी देव की तरह ताकतवर,
मुख्तलिफ रिलीजियस बुक्स में, जैसा कि बाइबल, कुरान मजीद और हिंदी स्क्रिप्चर्स में भी ऐसे इंसानों का जिक्र है जो काफी लंबे और ताकतवर हुआ करते थे। उनके पास ऐसी पावर्स थीं जो किसी फिक्शन मूवीज में सुपरमैन्स के पास होती हैं। कहीं पर इनका कद 450 फीट बताया गया तो कहीं पर 100 फुट था, और उन सिविलाइजेशन के लिए शायद बालबेक के पत्थरों को उठाना इतना मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, बाइबिलोन एक ऐसा मकाम है जहां तारीख, रूहानियत, साइंस, इसरार और फिक्शंस का इम्तिजाज नजर आता है। यहाँ के टेम्पल, सुरंगें, पत्थर और रवायात आज भी इंसानों के इल्म और फहम को चैलेंज करती हैं। क्या बाइबिलोन एक सिर्फ अजीम तारीखी मकाम है, या क्या ये वाकई देव मिलाई ताकतवर जिन्नात, खलाई मखलूकात का निशान है? ये फैसला आप पर है, लेकिन एक बात तय है कि बालबेक को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।